Good afternoon, everyone. I welcome you all in session 3 of Ratbara Talk Show. I am your host, Manmeet Kakkar, Joint Director, Planning and Development, Ratbara University. Today, we'll be interacting on a very special topic. The topic which is the need of the hour. The topic which is required to be discussed on frequent basis. Today, we'll be interacting on the topic a talk with a young entrepreneur, and for this we have a very special guest with us, Mr. Nikhil Dwivedi. He is very special to us in many ways. I would like to tell you that Mr. Nikhil has done his MBA in 2009 from a very renowned institute of India, that is Indian Institute of Planning and Management, and after completing his MBA he joined Ratbara University as a head of entrepreneurship cell. It was one of its kind cell in Ratbara University. During his tenure with Ratbara University, he has taught and motivated many students to be the young entrepreneurs. He also motivated the students about how to follow their dreams. So I welcome you, sir. Thank you. In this Thank program. So we'll be interacting about your journey with the Ratbara Group, your journey as an entrepreneur. So to start with, I'll ask you a very first and basic question. Initially, sir, tell us about your company, that is EYP Creations. Like how it started, how the idea came into your mind and all. So EYP Creations, we named it as Enterprise by Young Professionals, and it's a product of Ratbara Group only, because whatever I have achieved till now, Bhara sir specifically, he is my mentor in every sphere. Whatever I am today, and he has played a great role in that. So EYP is a product of Ratbara only. We a bunch of individuals from here. There were some students. I was actually heading entrepreneurship cell at that time. We all used to organize various events in the campus itself. Yeah. Not only here in the Mohali campus, but all the multiple campuses which we have. So event management came out of that eventually. And when we used to organize, we used to really have fun. And we really thought that this is something which is, entertainment, it's going to grow a lot in the coming future. So EYP, we thought in 2014 we started the company with a focus that we will create one of the best place to have events, to have fun, to have entertainment. And you'll not believe, there are we were 4 students at that particular point of time, and 3 of them were studying here. I was from entrepreneurship cell, and we all together started the company. That's great. And slowly and steadily the company went into various different spheres of entertainment. We started with event management. We entered into artist management. We are the biggest artist management company in North India, top 5 in India, currently managing around more than 42 artists in total. Right now EYP is into 7-8 different spheres. We are into digital. We do a lot of digital stuff. We produce shows. We have produced one of the best shows of Punjabi industry. We have produced Dil Diyan Gallan. We have produced Jazba, a lot of bigger shows. Yeah. We are into IP creations. We have created 7 different IPs with the name of Crossblade, Lager and Barrel. When I say IP, it means creating an on-ground festival also and a digital IP also. So it's a mixture of both. So yes, 7-8 spheres we are currently into. 6 years, it's been 6.5 years we have started the company, and touch wood, things are going great. That's great.
Nikhil ji, these days whenever like we speak with any students, like any student who is going to like graduate from a university or college, the main thing that he discuss or that is in his mind is like how to get a decent job, or like how to settle up in some MNC or getting a good job. इवन के जब हम छोटे बच्चे थे, पेरेंट्स परवरिश ही मोस्टली इस तरह की करते हैं कि बेटा अच्छी पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। बट क्या आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपने जॉब भी की है रैत बारह के साथ, उसके बाद आपने खुद भी अपनी जॉब क्रिएट की है, मतलब लोगों के लिए जॉब क्रिएट्स की हैं आपने, तो आपके हिसाब से क्या फ़र्क है, मतलब गेटिंग अ डिसेंट जॉब और एक अपना वेंचर चलाना, और उसमें डिफ़िकल्टीज आती हैं, सब कुछ आता है, तो आपके हिसाब से डूइंग अ डिसेंट जॉब एंड स्टार्टिंग अप विद योर ओन कंपनी, इसमें क्या डिफरेंस है? सो बेसिकली इट्स अ थॉट प्रोसेस, आई वुड से। मैं अगर अपनी जर्नी की ही बात करूं तो ये कंपनी मेरी एक जर्नी नहीं है, इससे पीछे मैंने बहुत कुछ अलग चीज़ों में अपना एक्सपीरियंस किया है। I was a professional sportsman before this. Okay. I have played cricket right from 6th class. Great. And professional cricket, and I have played that for 8 years. So in that particular sphere, I learned a lot of things. उस गेम ने मुझे इतना कुछ सिखाया। उसने सबसे पहली मुझे ये चीज़ सिखाई है कि आप जितना भी ऊपर चले जाओ उतना ही कम है। So the dream to achieve more and more and more and more, that thought came from that game. So my vision was to play for India. Unfortunately I couldn't, because 8 years के बाद मेरे को छोड़नी पड़ गई क्रिकेट, because मैं पढ़ाई में आगे जा रहा था, तो काफ़ी इन्सिडेंसेस उस टाइम पे हुए। Second, when I came in this institution, so basically it was, I would not say, I was on a training period at that time. I always wanted to start up business, so my parents said why not to join Riyad Bhara, because sir was known to us. And उन्होंने specifically कहा कि उनसे बढ़िया entrepreneur कोई हो नहीं सकता, अगर तूने entrepreneurship करनी है तो उनके अंडर रह के ट्रेनिंग कर। So that was the only focus I came here. उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ मैं स्टूडेंट्स से मिलता था और देखता था, और सबसे इंटरेक्शन मैंने जब शुरू करी, इवन प्लेसमेंट्स में भी मैंने थोड़ी देर काम किया, तो मुझे एक स्पेसिफिक चीज़ पता लगी स्टूडेंट्स के माइंडसेट के बारे में, कि हर बंदा एक इजी वे आउट ढूंढता है अपनी लाइफ का। आई डोंट से दैट जॉब्स आर बैड, आई डोंट से दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज ओनली गुड। सी, एनीथिंग यू डू इन योर लाइफ दैट हैज़ टू बी विद 200% पैशन। अगर आप वो पैशन से कर रहे हो तो आपको ग्रोथ हर चीज़ में मिल जाएगी। आज मैं कंपनी चलाता हूँ, मैं सबसे पहले एक एम्प्लॉई में क्या देखता हूँ कि ये स्किल्ड है कि नहीं है, डे 1 पे मेरे लिए काम कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। एक स्पोर्ट्समैन है, जब तक वो सेहत से अच्छा नहीं होगा, वो फिट नहीं होगा, वो स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता। सिमिलर वेज व्हेन यू वांट टू गेट अ जॉब इन एनी फील्ड, बी इट इंजीनियरिंग, बी इट फार्मेसी, इफ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, इफ यू आर नॉट दैट मच इंटेलेक्चुअल, इफ योर इंग्लिश इज नॉट गुड, if you are not that much your personality is not that great, so how will you will get good jobs? So अपने आप पे काम करना बेसिकली सबका क्रक्स है, कि स्टूडेंट्स में कई लोगों में वो चीज़ मैंने मिसिंग देखी। That is the only reason we started entrepreneurship self. Entrepreneurship doesn't mean only working for entrepreneurs or creating your organization. वो एक it was kind of a wave which we created here, so that the students, they come, they do activities, they do events, they do work, they gain that confidence. जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं या बिजनेसमैन हुए हैं या कामयाब इंसान जिन्हें हम कह सकते हैं, तो उनके कामयाब होने में कहते हैं जी परिवार का, फैमिली का और फ्रेंड्स का बहुत बड़ा एक रोल होता है। या बहुत बंदे हमें मिलते हैं जो कहते हैं जी मैंने तो बहुत कुछ करना था, मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करनी थी, मैंने अपना वेंचर स्टार्ट करना था, बट पेरेंट्स का प्रेशर इस तरह था कि मैं नहीं कर पाया। तो आपकी जो जर्नी रही है अब तक की, तो आपकी फैमिली का, आपका फ्रेंड्स का एक तो क्या रोल रहा इसमें? और जैसे होता है कि आपने भी अपना स्टडी की, उसके बाद जॉब की, जॉब करने के बाद सर्टेनली यू लेफ्ट द जॉब एंड आपने उस तरह का स्टार्ट किया जो बहुत कम लोगों ने सुना था, तो उस टाइम क्या आपकी फैमिली मतलब कंफर्टेबल थी इन चीज़ों में? मुझे इस चीज, आई एम लकी इनफ इन दिस पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज
my father always has supported me whatever I have done in my life. मैंने क्रिकेट खेली तो वो हमेशा मेरे साथ खड़े होते थे. मुझे आज भी याद है कि जैसे हमारा आई यूज टू प्ले एट मोहाली स्टेडियम एंड सुबह 4:30 उठ के मेरी प्रैक्टिस शुरू होती थी. फॉर 8 long years दिस वॉज अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस एंड ही यूज टू गो विद मी, ड्रॉप मी इन 6, 7, 8, 9 टिल द टाइम मैं खुद बस में जाने नहीं लगा था. जब बहुत छोटा था तो वो छोड़ने भी जाते थे, लेने भी आते थे. एंड ही वॉज ऑलवेज पैशनेट कि नहीं तू ये गेम खेल. फिर द डे आई स्टार्टेड कंपनी ऑल्सो ही वॉज वेरी मच सपोर्टिव, पॉजिटिव, बिकॉज उनको एक चीज़ मेरे अंदर दिखती थी जो वे भी मेरे को एक ही चीज़ की तारीफ करते हैं कि तू बहुत हार्ड वर्किंग है. और सक्सेस फेलियर आता रहता है बट तेरा हार्डवर्क कम नहीं होना चाहिए. तो तू जो भी करेगा मुझे लगता है कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा. सो ही वॉज ऑलवेज वेरी मच सपोर्टिव. फिर फ्रेंड्स की बात आती है. देखो 2 तरीके के दोस्त होते हैं लाइफ के अंदर. एक जो ऑलरेडी आपके साथ एक स्कूल पीरियड से पहले जुड़ते हैं, एक स्कूल पीरियड के बाद आते हैं. सो जब बाद में आते हैं तो दे आर मोर आई वुड से प्रोफेशनल फ्रेंड्स. स्कूल से पहले आपके स्कूल मेट्स होते हैं, उस टाइम पे करियर की इतनी टेंशन नहीं होती, बनना क्या है उसकी टेंशन नहीं होती. तो 2 अलग तरीके के दोस्त हैं. बट मुझे ऐसे लगता है कि दोस्त बनाने चाहिए जो कि पॉजिटिव हो. सबसे पहली चीज़ आपके आसपास एक ऑरा बन जाता है. अभी भी हम जितने दोस्त हैं, हमारा जो ग्रुप है, दे ऑल आर पॉजिटिव पीपल. व्हेन यू आर सराउंडेड बाय गुड पॉजिटिव पीपल, यू नो वी सिट वी टॉक. हर टाइम पे हम बात करते रहते हैं, लर्निंग लेते रहते हैं एक दूसरे से, किसी टॉपिक पे डिस्कशन करते रहते हैं. कोई आलतू फालतू की बात नहीं होती. तो भगवान की दया से मुझे इतने दोस्त मिले हैं, सारे अच्छे ही मिले हैं जो अच्छे तरीके से मुझे गाइड करी गए लाइफ के अंदर. अभी भी हम इकट्ठे होते हैं तो ज़्यादा टाइम हम स्पेंड अपनी ग्रोथ के लिए करते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए करते हैं, चाहे हम अलग अलग फील्ड्स में भी हैं. सो फ्रेंड्स हैव आई वुड से बहुत बड़ा रोल है फ्रेंड्स का आपकी ग्रोथ के अंदर. क्योंकि जब आप गलत संगत में पड़ जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है. क्योंकि आप अपने आप को उनमें देखते हो कि हाँ मैं भी ऐसा करूँ, मैं भी इस चीज़ में बढ़ूँ, मैं भी उस चीज़ में बढ़ूँ. सो वो तो ऑब्वियसली आपका डाउनफॉल लेके ही आएंगे. सो अब ये है कि अच्छे दोस्त बनाओ और अच्छे दोस्तों के साथ ही रहो. और आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? लाइक देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर अबाउट टू पास आउट फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी और फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस. तो व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू द पेरेंट्स? पेरेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है. वैसे तो आजकल आई थिंक हमारा जो वक्त चल रहा है, जो दौर चल रहा है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं. बट स्पेसिफिकली इन केस ऑफ आई वुड लाइक टू से कि फीमेल के केस में थोड़ा सा कई बार पेरेंट्स वो कर जाते हैं. बट आजकल इक्वलेंट है, फीमेल भी हमारे बराबर खड़ी हैं. मेरे ऑफिस के अंदर इफ़ वी हैव लाइक 70 एम्प्लॉयज़, आउट ऑफ देम 40 आर फीमेल एम्प्लॉयज़. और बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी, बहुत अच्छे तरीके से काम, सेंसिबल. सो आजकल दे ऑल आर वी ऑल आर इक्वल बेसिकली. एंड मेरी यही रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से कि मेल या लड़कों को तो आप उनके मन मर्जी का करने देते ही हो. प्लीज़ जितनी भी लड़कियां हैं आप उनको उनके मन का ज़रूर करने दो. चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो जिस फील्ड में भी जाना चाहती हैं. सो लड़कों से ज़्यादा ऊंचा नाम रोशन करके दिखाएंगे. Thank you. Like we were discussing about the role of your family, your friends. In every person's life, there are some personality or there's a one personality that inspire you a lot. Like, you know, in your case, who was that personality, who inspired you to like start up this kind of venture? So venture I would not say. Area तो मुझे खुद ही मैंने ढूंढा है. बट एक पर्सनालिटी जो मैं ट्रू एंटरप्रेन्योर कहूँगा वो है गुरविंदर अंकल ओनली. गुरविंदर सिंह भारा वाज द चांसलर ऑफ रैत बारा. जी 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 जी. बिकॉज वॉट एवर आई हैव लर्नड practically I would say I have learned from him. I have learned how to handle a big organization with multiple people working in. I have learned patience from him. I have learned the importance of vision from him.
I have seen him growing from nothing to here, what he has become. So मैं तो बेसिकली आप थोड़ी पर्सनल चीज़ है बट मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं तो बेसिकली उनकी जो गाड़ी शुरू से ही थी, तो जो डिग्गी में सबसे आखिरी सीट होती है मैं उसकी सवारी था. So जहाँ भी उन्होंने जाना मैं उनके साथ पीछे बैठा होता था. तो उनकी रास्ते में जाते बातें सुननी, किस तरीके से वो लोगों से डील करते हैं, किस तरीके से पॉजिटिव रहते हैं, प्रॉब्लम आनी पैनिक नहीं करना. देयर वर सो मैनी थिंग्स. सो मैं लास्ट सीट पे बैठ के बहुत कुछ उनसे सीखा. एंड उनके पैशन की तो मैं इतनी दाद देता हूँ. 18 घंटे 19 घंटे काम करते थे वो, और अगले दिन फिर सुबह हमारे से पहले ऑफिस में होते थे. आई हैव सीन हिम ट्रैवलिंग लाइक यू नो, जैसे रास्ते में हमने होशियारपुर से कई बार चलना, दिल्ली के लिए चलना, रास्ते में उन्हें कोई फ़ोन आया, उन्होंने कहना था ओके टेक अ लेफ्ट टर्न, लेट्स गो टू भाड़ा यूनिवर्सिटी. रास्ते में जाते आते हमने भाड़ा यूनिवर्सिटी की तरफ चले आना. तो मैंने पहले तो मैं डरता उनसे इतना था, तो उन्होंने डरते डरते पूछना, सर मैं कपड़े नहीं लेके आया भी वहीं रुकेंगे. उन्होंने कहना है काका असी एंटरप्रेन्योर हैं, असी किते भी रुक सकते हैं, किते भी जा सकते हैं. वहाँ काम खत्म करना, सीधा रातों रात वापस, अगले दिन फिर टाइम पे. सो इट्स नेवर अबाउट नंबर्स, इट्स ऑलवेज अबाउट पैशन. जितनी ज़्यादा पैशन से आप अपने प्यार से कोई चीज़ करोगे तो उतनी ज़्यादा वो ग्रो करेगी. ये बहुत बड़ी बात है. हम भी अपनी यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल चांसलर गुरविंदर सिंह भारा सर से हर दिन डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं. जैसे निखिल सर की बातों से भी हम सब सुन रहे हैं कि आपने अगर किसी पर्सनैलिटी से, किसी अच्छे बंदे से कुछ सीखना है तो आपको बिल्कुल डाउन टू अर्थ रह के सीखना पड़ता है. जस्ट उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है, अपने आप को अनलर्न करना पड़ता है, तब आप जाके कुछ लर्न कर सकते हो. तो बहुत अच्छा लगा सर से ये सुन के. लाइक एक तो हो गया आपको मोटिवेशन मिली या इंस्पिरेशन मिली गुरविंदर सिंह भारा सर से एंटरप्रेन्योर बनने की. बट जो आपने एक कंपनी स्टार्ट की AYP क्रिएशंस के नाम से, मतलब दैट वाज टोटली अ न्यू कंसेप्ट इन दीज पार्ट ऑफ कंट्री ऑन दोज डेज. लाइक टैलेंट मैनेजमेंट, बहुत कम लोग थे जिन्होंने ये चीज़ें सुनी हुई थी जी. तो क्या चीज़ आपके माइंड में क्लिक की कि आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं स्पेसिफिकली, या मतलब क्या इसके बिहाइंड आइडिया क्या था इस लाइन में आने का आपका? सो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मैंने ये चीज़ पहले भी बताई हुई है, मेरा पैशन था कि मैं कुछ इवेंट्स के अंदर करूं, बिकॉज यहाँ पर जो चीज़ बनी थी. तो जब हम उस फील्ड के अंदर गए, वी स्टार्टेड डूइंग रिसर्च. कोई भी चीज़ स्पेसिफिकली एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है गैप आइडेंटिफाई करना. चाहे वो IT है, चाहे वो ITES है, चाहे वो कोई और टेक्नोलॉजी कंपनी है. हर कंपनी ने जो बड़ी बनी है उन्होंने कहीं ना कहीं एक गैप आइडेंटिफाई करा है. उस गैप के बेस पे उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट या आइडिया बनाया. सो व्हेन वी एंटर्ड हेयर, हमने काफ़ी रिसर्च शुरू करी. वी स्टार्टेड मीटिंग वेरियस पंजाबी ऑर्गेनाइजेशंस, पंजाबी एंटरटेनमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. तो हमने गैप आइडेंटिफाई किया कि यहाँ ये सेक्टर बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है. इवेंट्स भी, आर्टिस्ट मैनेजमेंट भी. उस टाइम पे आर्टिस्ट अपने इंडिविजुअल मैनेजर्स रखते थे. देयर वॉज नो पर्टिकुलर कंपनी who was treating their 360-degree management. Who was treating their show business also, their movie business also, their digital business also, and then their YouTube also. There are multiple things of an artist. उनका content develop करना, किस तरीके का content होगा. It was only like कि फ़ोन उठाए, बात करी, ख़त्म कर दिया. तो we brought in that sales aspect, we brought in that 360-degree management concept. एंड वो सारी चीज़ें मिलके हमने ये एक एरिया आइडेंटिफाई किया कि हाँ यहाँ पर बहुत सारा गैप होगा. फॉर्चुनेटली आवर फर्स्ट आर्टिस्ट वाज बब्बल राय एंड जस्सी गिल. हाँ जी, दे वर ऑल्सो स्टार्टिंग देयर करियर्स एट दैट टाइम. 2014 की बात कर रहा हूँ मैं. एंड मैं उनको कैसे जानता हूँ, बब्बल राय एंड मी, वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट टुगेदर. तो बब्बल पाजी का और मेरा क्रिकेट का कनेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. तो वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, तो मैं उनसे मिला. तो आई स्पोक टू हिम रिगार्डिंग दैट दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट. वो कहते जी हाँ, लेट्स डू समथिंग टुगेदर. सो 2014 वी स्टार्टेड एंड बहुत बढ़िया हमें फर्स्ट ईयर में उसका रिस्पॉन्स मिला. बिकॉज
टारगेट्स अचीव करे, टारगेट सेट करे, उन तरीक़ों से हमने काम शुरू किया जैसे एक प्रोफेशनल कंपनी करती है। सो गैप आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, वो गैप हमने आइडेंटिफाई किया इस इंडस्ट्री के अंदर। तो जितने भी हमने मल्टीपल काम किए, अगले 6 काम वो सारे गैप बेसिस पे किए। हमने क्रॉस ब्लेड फेस्टिवल शुरू किया, देयर वाज सनबर्न इन इंडिया फॉर EDM म्यूजिक, देयर वाज NH7 वीकेंडर फॉर इंडी म्यूजिक, बट देयर वाज नो फेस्टिवल फॉर पंजाबी। So we started Crossblade, which is the first Punjabi music festival in the country. 2017 we started, and 2021 we are rated in top 5 festivals of India. Really great. So वहाँ पर भी हमने जितने IPs बनाई तो सारी गैप देख के बनाई कि किस किस चीज़ की ऑडियंस को ज़रूरत है। बिकॉज एट द एंड बिजनेस आप अपने लिए तो कर नहीं रहे, बिजनेस लोगों की डिमांड मीट करने के लिए कर रहे हो। तो वो डिमांड क्या है, आपको वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, लाइक ये आपने अपनी बताई कि कैसा रहा आपका सफ़र, क्या डिफ़िकल्टीज़ क्या आई स्टार्टिंग में आपको, क्या किस तरह का रिस्पांस था जब, क्योंकि बिल्कुल ही जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि आप थे 2-3 आपके साथ स्टूडेंट थे, तो वैसे ही हम किसी के पास जाते हैं तो बंदा सीरियस नहीं लेता, तो आपको आई इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ स्टार्टिंग में? डिफ़िकल्टी नहीं कहूँगा, बट पहाड़ ऑफ डिफ़िकल्टीज आता है। तो डिफ़िकल्टी तो बहुत छोटा वर्ड हो जाता है फॉर एन एंटरप्रेन्योर। 200 रुपया कमाने के लिए भी कई बार सोचना पड़ता था। मैं तो यहाँ से वेल सेटल्ड होके गया था एंड ऑन सच अ टॉप पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, यू नो, एंड गोइंग बैक स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉल रूम, पत्थरों के ऊपर वो रूम था हमारा, एक अनकंस्ट्रक्टेड हाउस था मोहाली के अंदर, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। आज भी वो हमारा ऑफिस है, हम वहाँ जाते हैं कभी कभी। तो वो दिन मुझे बहुत अच्छे से याद हैं, और एवरी डे वी यूज टू पिच 5-7 पीपल कि हमें इवेंट दो, हमें इवेंट दो, हमें इवेंट दो। मुझे लगता है हमने 3 महीने तक हमें कोई काम नहीं मिला था, 3.5 मंथ्स तक। 3.5 मंथ्स के बाद भी जो काम मिला वो किसी दोस्त की कंपनी का मिला कि चल यार तेरी हेल्प कर देते हैं। सो हर रोज़ ये मन में आता था कि यार मैं क्या पंगा ले लिया। बट वही शाम को जब शाम होनी, फिर दोबारा अपने आप को मोटिवेट करना कि हाँ कि नहीं यार कोई बात नहीं, अगले दिन फिर जाएंगे, फिर कोशिश करेंगे। इवन हमने जब पहला इवेंट किया था, मुझे अच्छे तरीके से याद है, देयर यूज्ड टू बी लॉट ऑफ परमिशंस व्हिच वर रिक्वायर्ड टू डू ऑर्गेनाइज एन इवेंट। तो डेप्यूटी कमिश्नर परमिशंस देता है। तो मैंने 4-4, 5-5 घंटे DC ऑफिस में ही बिताने, क्योंकि कभी कोई है, कभी कोई नहीं है, कभी कोई अवेलेबल है, कभी कोई नहीं है, प्रोसेस पता नहीं है, आप सीख रहे हो वहाँ जाके, आपको ये नहीं पता कि किससे परमिशन मिलती है। सो मैनी थिंग्स आर देयर विच कम्स इन योर वे एज हर्डल्स। बिजनेस कोई देता नहीं है, आप नए हो, आपको कोई पूछता नहीं है, पैसे आपके पास है नहीं है, तो आप कैसे काम चलाओगे? तो ये एक क्वेश्चन हमेशा से मेरे माइंड में था। But after some time, I thought of one thing. We are entrepreneurs. हम पैसे से पैसा नहीं बनाते, एंटरप्रेन्योर आइडिया से पैसा बनाता है। आपका अगर आइडिया स्ट्रॉन्ग है और आप एक चीज भी क्रैक कर जाओ उस आइडिया के अंदर, फिर स्काई इज द लिमिट, देन यू आर ऑन द राइट पाथ। सो मैंने वो चीज पकड़ ली थी कि मेरा आइडिया ठीक है, गैप इस इंडस्ट्री में है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो चौथ, मुझे काम जरूर मिलेगा, और मैं डटा रहा उस चीज़ के लिए। आज हम 1 साल में अगर हम आर्टिस्ट मैनेजमेंट के शोज़ में लाएं तो हम 500 से ज़्यादा शोज़ करते हैं, और हमारे फेस्टिवल्स अराउंड 20 से 22 फेस्टिवल होते हैं थ्रू आउट इंडिया एंड अब्रॉड। फर्स्ट ईयर ऑफ EYP वी डिड ओनली 3 इवेंट्स, पूरा साल फ्री। 3 इवेंट किए, तो उसके लिए आप सोचो कितना हमने टाइम स्पेंड किया होगा लोगों को अप्रोच करने में। तो 1000 बंदे को अप्रोच किया तो तीनों ने काम दिया। So yes, of course, first 2-3 years for a startup, it's very, very painful. ये सारे यंग बच्चों के लिए भी जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट आइडिया है कि सिर्फ पैसे से ही पैसा नहीं बनाया जा सकता या पैसे से ही बिजनेस नहीं चलाया जा सकता। उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपका आइडिया, और उस आइडिया को कैसे आपने पैशनेटली फॉलो करना है। तो जैसे मैं लाइक 15 days बैक आई वॉज वॉचिंग योर जोश टॉक, तो उसमें एक चीज़ थी जो मैं चाहूँगा आप हमारे व्यूअर्स के साथ भी डिस्कस करें
दैट वाज अबाउट योर रूम फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड योर जर्नी। जी। थोड़ा उसके बारे में प्लीज बताइए अब हमारे जी। या मैं अब जैसे मैंने थोड़ा सा भी बताया भी है, 11 फेस में हमारा एक पुराना घर था, तो वहाँ पर एक कमरा था, एक ही कमरा कंस्ट्रक्टेड था, इवन कि दरवाजे भी नहीं लगे हुए थे। तो हमने वहाँ पर रोडियों के ऊपर पहले तो हमने एक फ्लेक्स बिछाई, फ्लेक्स बिछा के हमने 3 बीन बैग्स रखे, बीन बैग्स के साथ एक लकड़ की हमने एक फ्रेम बनाया जिसके अंदर अपना कुछ किताबें, कुछ बुक्स, या आप ये लगा लिए पेन्स वगैरह के पेन होल्डर वगैरह, छोटा सामान, हाँ जी, देने के लिए। तो वहाँ से शुरू करें, सर्दियों के दिन थे, एक हीटर भी था हमारे पास। सो वहाँ से उस रूम से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, एंड वहाँ पर बैठ के जो सुकून मिलता मुझे आज वो फुली कंस्ट्रक्टेड स्पेस है वैसे हमारी, बट हमने वो रखी हुई है, वी हैव शिफ्टेड आवर ऑफिस टू अदर प्लेसेस नाउ। आज भी मैं जब वहाँ जाके बैठता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर मेरे मन में कोई आइडिया आ सकता है तो वो वहीं से आ सकता है। तो जगह मायने नहीं रखती जी। आपकी लगन मायने रखती है। तो उस टाइम पे हमें, आज शायद मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि हाँ मेरा रूम में ये होना चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, बट उस टाइम पे पैशन इतना ज़्यादा था, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि हम कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं। Yes. सारा दिन हमने यही कंसंट्रेशन में बिताने, ओके यार कुछ करें। That we call the sense of belongingness. जी। तो निखिल जी एक और बताइए, like let's take this discussion into little lighter mode. काफ़ी हमारी सीरियस डिस्कशन चल रही है। like बहुत लोग सोचते हैं कि बिजनेस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग, कि बिजनेसमैन मतलब 4 लोग बड़ी सीरियस सी शक्ल बना के बैठे हैं, मैकबुक उन्होंने खोले हुए हैं, बड़ी सीरियस सी डिस्कशन चल रही है, एंड बिजनेस इज ऑल अबाउट दिस सीरियसनेस। आपके हिसाब से आप अपनी बिजनेस जर्नी के दौरान कोई फनीएस्ट इंसिडेंट, जो फनी इवेंट आपके साथ हुई हो, जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? पहले तो मैं फर्स्ट चीज़ पे बोलना चाहूँगा, बिजनेस सीरियस चीज़ है। हम द बिजनेस विच वी आर इनटू, इट इज़ एंटरटेनमेंट। सो हमारे तो सारा दिन इस बिजनेस में शुगल मेला ही लगा रहता है, बिकॉज वी आर इनटू म्यूजिक, वी आर इनटू इवेंट्स, वी आर इनटू बिग फेस्टिवल्स, वी आर क्रिएटिंग डिजिटल कंटेंट। तो हमारा ऑफिस की वाइब या हमारे लोगों की या हमारे काम की वाइब बड़ी डिफरेंट है। इट्स ऑलवेज एंटरटेनिंग। जब हम शुरू भी हुए थे तो हम ऐसे नहीं थे कि हम सुबह 10:30 जाके लैपटॉप पे लगे हुए हैं या मीटिंग्स कर रहे हैं। जब भी हमें टाइम मिलता था हम क्रिकेट भी खेल लेते थे साथ में ग्राउंड में। जब भी हमें टाइम मिलता था, दिन में मिल ही जाता था, तो कुछ ना कुछ स्ट्रेस बस्टर हम करते ही रहते थे। एक दूसरे के साथ 3-4 बंदे होते थे तो एक दूसरे के साथ कोई बदमाशी कर लेनी, कोई फन कर लेना, तो ये चलता रहता था। एंटरटेनमेंट आई वुड से कोई भी बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नीड अ ब्रेक in a day for sure. You are working on something जहाँ पर आपका दिमाग किसी और ध्यान में बटे, तो वो ब्रेक किसी भी फॉर्म में हो सकती है। It's listening music also. It can be in form of going out and having a cup of coffee, walk, और कुछ खेल लिए या कुछ वीडियो देख ली, मोटिवेशनल चीज़ देख ली, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो फ़नी मोमेंट्स होने चाहिए, और कुछ फ़नी मोमेंट्स हमारे बहुत हैं जो हम करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। मुझे एक बार याद है कि हमारा एक टीममेट था गुरशेन, उसके पास एक स्कूटर होता था, तो वो कहीं आसपास काम गया था, तो हमने उसकी चाबी लगा के स्कूटर साइड कर दिया था, और हमने ये डिसाइड किया था कि हमने 2 दिन स्कूटर नहीं वापस लेके आना, ताकि इसकी 2 दिन नींद खराब रहे। तो बड़ा वैसे तो डिफरेंट टाइप का मजाक था, बट ये चीज़ हुई थी हमारे साथ। दिस इज दी पार्ट ऑफ जर्नी। एक्चुअली जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स या जो बनना चाहते हैं, वो जो सुन रहे हैं हमारा या हमारा वेबिनार देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये एक सीखने की चीज़ है कि बिजनेस इज़ नॉट ओनली अबाउट द सीरियसनेस, इट इज़ अबाउट द सिंसेरिटी। ठीक है, उसमें आप सिंसियर होने चाहिए, साथ साथ पावर ब्रेक्स या थोड़े फनी ब्रेक्स भी होने चाहिए, ताकि स्मूथली सब कुछ चलता रहे और बहुत ज़्यादा यहाँ स्ट्रेस ना आए। एक और चीज़ है, हम अक्सर सुनते हैं कि मनी मेक्स द मेयर गो। ठीक है, पैसा ही सब कुछ है, पैसे से ही चलता है, पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि
क्या सिर्फ पैसा होने से एक बड़ा अच्छा बिजनेसमैन बना जा सकता है, या पैसे का क्या रोल है बिजनेस में? सर मैं एक चीज़ कहूँगा, आई माई सेल्फ आई एम एन एग्जाम्पल of making something from zero money. Great. I did not invested a single penny. My only investment was my office, which I took from my father. और वो भी कोई एक वेल कंस्ट्रक्टेड स्पेस नहीं थी जो मैंने अभी बताया है। बाकी सारा काम मेरे आइडिया पे था, बिकॉज सी स्टार्टिंग में एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे डिफिकल्ट चीज़ ये इज रेजिंग कैपिटल। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपका हर बिजनेस अब इसमें आता है, जैसे अब आप डे 1 पे प्रोडक्ट बिजनेस करने लग जाओ, कोई आप कंप्यूटर बनाना चाहते हो तो आपको पहले प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। सो प्रोटोटाइप बनाने के लिए आपको आइडिया चाहिए और एक बड़ी मिनिमल इन्वेस्टमेंट चाहिए। उस मिनिमल इन्वेस्टमेंट को लाने के बड़े तरीके, क्योंकि वो इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं। मेरे को एक बार हमारा एक सुमेश जग्गा, मुझे अभी भी याद है, हमारी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था, इज इन ऑस्ट्रेलिया। तो उसने एक बार एक लेक्चर दिया था यूनिवर्सिटी के अंदर ही कि हाँ जी, कि किस तरीके से हम कैपिटल रेज कर सकते हैं। तो उसने बड़ी चीज़ें उसमें बताई कि घर पे आपके कोई आपका सामान जो आप यूज़ नहीं करते वो आप OLX जो साइट आई थिंक वही है, वहाँ जाके आप सेल कर सकते हो। आप अपने दोस्त से इतनी देर के लिए बोरो कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें जो हम नॉर्मली वो करते हैं, क्योंकि 10,000 से भी बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, 50,000 से भी हो जाता है, 1 लाख से भी आ जाता है। तो बेसिकली जब आपको पता है कि आपके बैक एंड में अभी पैसा नहीं है, आपका आइडिया इस तरीके का ही होना चाहिए जिसपे आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी ह्यूज ना हो। धीरू भाई अंबानी, एवरीबडी सर है इस फील्ड में। सर नॉट ओनली वन पर्सन, जितने लोगों ने भी कुछ नया क्रिएट करा है ना, उनमें से किसी के पास भी पैसा नहीं था। आई हैव हर्ड स्टोरीज ऑफ ऑलमोस्ट एवरीबडी। आई हैव पर्सनली मेट ऑल दीज पीपल। आई हैव मेट संजीव बिखचंदानी, द फाउंडर ऑफ naukri.com. I have met Deep Kalra, the founder of MakeMyTrip.com. So they all are top people, but उनके पास किसी के पास भी पैसा नहीं था स्टार्टिंग में। They had the idea, they created it, and then it is, you know, when they went into public, then they got the money after selling their product. So just a last question, what suggestion you want to give to the young entrepreneurs or the young students who want to enter into the entrepreneurship? सबसे पहली चीज़ तो अपना विजन, जब भी आप इंस्टीट्यूशन में आते हैं सबसे पहले अपना विजन एक सेट करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो बंदा कहता है कि कोई बात नहीं, अभी मैं 4 साल पढ़ लूँ, एंजॉय कर लूँ, उसके बाद देखूँगा। आजकल वो वक्त नहीं रहा। यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, वेरी वेरी अर्ली। सो सबसे पहले अपना विजन स्टार्टिंग से सेट करें, बनना क्या चाहते हैं। जो आप बनना चाहते हैं उसकी आप रिसर्च ड्यूरिंग योर इंस्टीट्यूशन या ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम ही शुरू कर दें। हो सके तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम और वेस्टिंग टाइम इन एनी अदर थिंग्स, स्टार्ट वेरी अर्ली। स्टार्ट फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन ओनली। अपने कॉलेज से ही शुरू करो, छोटा शुरू करो। आजकल हर कॉलेज के अंदर फैसिलिटीज़ हैं जहाँ की हम जो बात करते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप सेल था, वी गेव स्पेसेस टू वेरियस स्टूडेंट्स, गो सिट देयर, डेवलप योर आइडिया। दूसरी चीज़, हार हर मोड़ पे मिलेगी, हर रोज हारोगे, इस चीज़ से डरना नहीं है अगर उस रास्ते पे चल गए। सो बेसिकली ये 2 चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं भी फेल हो सकते हो। तो मेरे कोच हैं, क्रिकेट के कोच, वो एक चीज़ कहते थे कि निखिल, क्रिकेट सबको मिलती है, किसी को जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है, बट मिलती ज़रूर है। जो लगा रहता है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अचीव करके आता है। सो दिस इज समथिंग आई थिंक विच वी शुड फॉलो। जी, मतलब एक बहुत अच्छी लाइन लगी कि हार आपको हर रोज मिलेगी, बट आपने हार से हारना नहीं है। ये ऐसी ही छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम अच्छे लोगों के साथ जर्नल डिस्कशन चल रही होती है, जो बाद में कोट्स बन जाती हैं। तो आज का हमारा ये वेबिनार हम यहीं समाप्त करेंगे। बहुत जल्द आपको एक और नए टॉपिक के ऊपर एक और नए गेस्ट के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।